परमेश्वर का वचन एक ऐनक के समान है, और वो हमारे जीवन में जो कमियां हैं उसको उजागर करता है, और ये बड़ा दुखद होगा यदि इस कमियों को देखने के बाद हम उसको ठीक नहीं करते हैं। Okay, the name Samuel means heard by God. Heard by God. शमूएल के नाम का अर्थ है परमेश्वर के द्वारा सुना गया। His birth was an answer to a prayer. उसका जो जन्म है वो प्रार्थना का उत्तर था। If you read chapter 6 of 1 Chronicles, you find that his parents they were descended from Levites. और पहला इतिहास उसका 6वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके माता पिता जो हैं लेवियों के कुल से आते थे। And in chapter 1 of 1 Samuel, you find that he was an Ephraimite too, living in that region. So there was a Levite and an Ephraimite connection in his life. और पहला शमूएल पहले अध्याय में हम पाते हैं कि वो एक प्रेमी था, तो एक लेवी और एक प्रेमी का कनेक्शन उसके जीवन में था, हमेशा पाते हैं। His mother's name was Hannah and his father's name was Elkanah. उसके माँ का नाम हन्ना था और उसके पिता का नाम एल्काना था। Very early in childhood, he had to move away from his home and was brought up by someone else, grew up in a strange place for him, but still he became an incredible person in the eyes of the Lord. जीवन के बहुत शुरुआत में ही उसको अपने घर से दूर रहना पड़ा और किसी और ने उसका पालन पोषण किया, लेकिन परमेश्वर के भय में बढ़ा और परमेश्वर के लिए बहुत सामर्थी हुआ वो। He grew up to become a prophet, a judge, and a person who appointed at least 2 of the kings who ruled Israel. और वो भविष्यद्वक्ता बना और धर्मी भविष्यद्वक्ता था, और वो ऐसा भविष्यद्वक्ता था जिसने 2 राजाओं का अभिषेक किया। In 1 Chronicles chapter 29 verse 29, we are told that Samuel recorded the events that took place in David's life. और पहला इतिहास 29 के 29 में हम पाते हैं कि शमूएल ने दाऊद के जीवन में जो कुछ भी हुआ उसको लिखा। And these were added to the writings of Nathan and some other prophets. और इसको भविष्यद्वक्ता नाथान द्वारा और जो अन्य भविष्यद्वक्ता द्वारा जो लिखा गया था उसमें जोड़ दिया गया। So the books of 1 Samuel and 2 Samuel are actually a collection of writings, perhaps contributed by many people. और पहला शमूएल और दूसरा शमूएल शायद बहुत सारे लोगों द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का संग्रह है। Though we have 2 divisions, 1 and 2 Samuel, the early book was one book and it was together. और भले ही आज इसे 2 भाग में बांटा गया है, लेकिन पहले ये एक ही भाग हुआ करता था। And that is why when you read 2 Samuel, you will not even find one mention of Prophet Samuel's name. और इसलिए जब आप दूसरा शमूएल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक जगह भी भविष्यद्वक्ता शमूएल का नाम नहीं लिखा गया है। So Samuel belonged to the era of judges. और शमूएल न्यायियों के समय काल का एक भविष्यद्वक्ता था। Eli and later on Samuel were the last judges of Israel. और इज़राइल के आखिरी जो न्यायी थे वो इलाई और शमूएल थे। The word judges has nothing to do with delivering verdicts, because the word connotes that in modern times. न्यायियों का तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि verdict. Not a court judge, not someone who was a judge who gave निर्णय देने का कार्य उनका नहीं था। Okay, the word judge simply means savior. और न्यायी का
अर्थ या तात्पर्य उद्धार करता है। God raised these people, these judges or saviors who rescued Israel from disastrous times and brought them close to Him again. परमेश्वर ने इन न्यायियों को या उद्धारकर्ताओं को ऐसे समय पर लाया कि इन्होंने इसराइलियों को बड़ी ही दुखद स्थिति से बचाया। And the book of 1 and 2 Samuel in that sense is written around 1100 BC to 1000 BC. और ये जो पहला शमूएल और दूसरा शमूएल है वो 1000 और 1100 BC के आसपास लिखा हुआ पुस्तक है। And it shows the transition of Israel from a people who had no king to a people who now were ruled by a king. और ये उस स्थिति को बताता है जहाँ पर पहले ये झुंड जिसका कोई राजा नहीं था और अब जिसके ऊपर राजा का हाकिम हो गया है। And during his lifetime, Samuel traveled from place to place, and his journeys took him across the nation of Israel. और अपने जीवन काल में शमूएल को जगह जगह जाना पड़ा और वो इस्राएल के पूरे प्रांत में घूमता था। And in his early childhood, he lived at a place called Shiloh or Shiloh, and later on at a place called Ramah. और अपने बचपना में वो शिलोह नाम के स्थान पर रहता था और बाद में वो रामतय में रहता था। And Shiloh is the place where the tabernacle of God was established or built or stationed. और शिलोह वो स्थान था जहाँ पर परमेश्वर का तंबू बनाया गया था और रखा गया था। And that was the place where the Israelites came to give offerings and sacrifices. और ये वो स्थान था जहाँ पर इस्राएली अपना भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे। Later on, during David's reign, Jerusalem was chosen, and Solomon built a temple at Jerusalem, and the tabernacle was moved in that sense from Shiloh. और बाद में यरूशलेम को चुना गया और सुलेमान के काल में यरूशलेम का मंदिर बनाया गया और शिलोह से ये तंबू को लेकर के यरूशलेम लाया गया। And through the pages of the book of Samuel, you will find Samuel as a child, as an infant, then growing up, maturing as a leader, and becoming a towering giant in Israel's history. और शमूएल के पुस्तक के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आप पाएंगे शिशु शमूएल, बालक शमूएल, और कैसे वो परमेश्वर के लिए बड़ा सामर्थी और उपयोगी पुरुष बन जाता है। And just last year, before the onset of COVID, the news came across the world that the corner horn of the altar was excavated in Shiloh. और कोविड शुरू होने के पहले पिछले साल जो कोने का जो तंबू का जो कोना था वो शिलोह में ढूंढ के निकाला गया है। And so we know that many of all the things that are written in the Bible are true and proved from archaeological findings. और हम ये जानते हैं कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वो जो खुदाई के दौरान उसका जो प्रमाण है वो पाया गया है। Chapter 1 verse 1 begins with, there was a certain man from Ramathaim, a Zophite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah. पहला अध्याय का पहला इस प्रकार से है, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था। Verse 2 talks about him having two wives who were called Hannah and Peninnah. और उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरा का नाम पनीना था। Okay, just like any other family in Israel's history, this family also lived in Israel. और जैसे कि और जो परिवार
इसराइल में रहते थे, ये परिवार भी इसराइल में था। You don't read about you read only about a few of the families because most of the others played a silent role. हम कुछ ही परिवारों के बारे में जबकि पढ़ते हैं, क्योंकि बाकी सारे परिवार बड़ा शांति वाला जीवन जी रहे थे। And it is families like this which found a mention in the Bible because we can learn many things from their lives. और ऐसे परिवारों का जिक्र बाइबल में किया गया है क्योंकि इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Okay, so Elkanah had a polygamous family. एल्कनाह का परिवार में बहु पत्नियां थी। And though polygamy is not approved, yet it is in one of a family like this that Samuel was born. भले ही बहु विवाह परमेश्वर द्वारा अनुमति नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ एक ऐसा परिवार था। And in verse 3, we are told that year after year, this man went from his town to worship and sacrifice the Lord at Shiloh. और हम तीसरा आयत में पढ़ते हैं, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। And so we find that this family was extremely religious, and they were fulfilling the things that were expected of them by the Jewish or Israelite community. और हम पाते हैं कि ये परिवार अत्यधिक धार्मिक था और यहूदियों के नियम अनुसार जो करना था वो नियम अनुसार करते आ रहे थे। And in verse 5, we find that Elkanah had a special affection for Hannah. और पांचवा आयत में हम पाते हैं कि एल्कानाह को एक खास प्यार था हन्ना से। But verse 6 says, God had closed her womb. छठा आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके कोख को बंद कर रखा था। Okay, as we look at this passage and the events that unfold, we will understand the importance of what God is doing. और जब हम इस भाग को पढ़ रहे हैं और जो घटनाओं को देख रहे हैं, तो हम परमेश्वर जो कार्यों को करता है उसकी गंभीरता को हम समझ पाएंगे। God closing her womb resulted in much anguish to Hannah. और यहोवा ने उसका कोख बंद करने के कारण हन्ना बहुत दुखित हुई। And Elkanah's other wife Peninnah, who had children, often provoked her to the point where Hannah was driven to tears. और एल्काना की दूसरी पत्नी उसे हन्ना को अत्यंत चिढ़ाती थी, कुढ़ाती रहती थी और इस कारण से हन्ना बहुत दुखित होती थी। Verse 7 says that her rival provoked her till she wept and will not eat. और सातवें आयत में हम पढ़ते हैं कि जो पेनिना है वो इतना कुढ़ाती थी उसे कि वह रोती थी और खाना न खाती थी। Verse 7 begins with, this happened year after year. So it was not something that happened once or twice, but it happened year after year in the same way. और सातवें आयत में हम पढ़ते हैं कि वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और ये मतलब साल दर साल हो रहा था, ऐसा नहीं था कि एक बार हो गया था। You know, this beautiful journey to the tabernacle in Shiloh would have been wonderful, looked forward by everyone as a change in the family, but it brought grief and distress to this family. शिलोह में साल दर साल जाना बड़ा आनंद का विषय रहा होगा, लेकिन इस परिवार के लिए बड़ा दुखद समय था। Okay, and we must be careful to watch our own lives, lest what we talk and what we do drive other people to tears and grief. और इसलिए हमें बड़े सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं ऐसा हो सकता है कि दूसरों को वो भयभीत कर जाए।
Many new young married couples, who have delayed childbirth, delayed by 2, 4, or 5 years. Many of them, the women suffer a lot because so many people keep asking them, "Kuch news hai kya? Kuch news hai kya?" And they break into tears and weep when they are alone because they are not happy with what is going on. और जो नए नए विवाहित पुरुष और स्त्री है, जब उनका बच्चा होने का समय जो है वो लंबा होता जाता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल होता है, और लोग पूछते हैं जब उनसे कि कुछ खबर है क्या, कुछ खबर है क्या, तो बड़ा दुख का समय होता है। और ये स्त्रियां अपने आप में वो बिलखती है। Okay, maybe Linson can read 1 Corinthians chapter 4 verse 7. मैं पढ़ता हूँ 1 कुरिन्थियों उसका 4 और उसका 7। क्योंकि तुम में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, जबकि तूने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। Okay, Penina was boastful. सॉरी अंकल, Penina was boastful of the fact that she had children. पेनिना जो है वो घमंड करती थी इस बात में कि उसे बच्चे थे। She thrilled in putting down Hannah because she did not have what she had. और उसको बड़ा आनंद होता था इस बात में कि हन्ना का मजाक उड़ाए उस बात में जो उसके पास और हन्ना के पास नहीं था। So every time they undertook this happy journey to the tabernacle in Shiloh, she would provoke Hannah till she cried and stopped eating. और हर साल जब वो शिलो जाते थे तो पेनिना हन्ना को अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी, इतना तक कि वो रोने लगे और खाना न खाए। And 1 Corinthians chapter 4 verse 7 says that whatever we have has been given by God. So there is no room for us to boast. और 1 कुरिन्थियों 4 के 7 में हमें बताया गया है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमें दिया गया है, इसलिए हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। Okay. So we need to be careful about how we speak, what we speak, and how we treat others. और इसलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार का है। Just as a family which does not have children may be very sensitive, a child who has less marks may be sensitive if marks are asked. एक परिवार जिनको बच्चा नहीं है वो बड़ा संवेदनशील परिवार हो सकता है। एक बच्चा जो कि कम अंक पाया है वो भी बड़ा संवेदनशील हो सकता है, भावुक हो सकता है। And others who earn less or are without job may be very sensitive. So we need to be very careful about how we broach topics, what we talk, and what we talk in private and what we talk in public. और ऐसे लोग जिनकी कमाई थोड़ा कम हो सकता है, नौकरी पेशा बहुत अच्छा ना हो, तो वो भी बड़े संवेदनशील हो सकते हैं। और इसलिए हम उनसे जब बात करते हैं या फिर लोगों के सामने जब बात करते हैं बड़ा ख्याल रखें, ध्यान रखें। Verse 9. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Okay, she decided to act on her problem. और 9वें आयत में हम पाते हैं कि तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। अब उसने तय कर लिया कि जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। Verse 9 says, Eli the priest was sitting on a chair near the tabernacle entrance. और 9वें आयत में हम पढ़ते हैं कि यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। And the second thing we read that she did is in verse 10. She prayed to the Lord. और 10वें आयत में हम दूसरी बात पाते हैं जो उसने किया, उसने पर यहोवा से प्रार्थना किया। And the third thing that she did in verse 11, we are told that she made a vow before God.
और तीसरी बात जो उसने किया वो हम 11वें आयत में पढ़ते हैं कि उसने यहोवा से मन्नत मानी। She didn't sit quiet on her problem. She went to the Lord, the only one who could intervene on her behalf for her problem. और वो अपने समस्या को लेकर के बैठी नहीं रही, परंतु यहोवा के पास गई। और वो यहोवा जो कि एकमात्र है जो हस्तक्षेप कर सकता था। Very often, when we go through struggles and distress in our life, we run from pillar to post. We hide from other humans who may ask us uncomfortable questions. और कई बार हम जीवन में कठिन परिस्थितियों से जब होकर के गुजरते हैं तो हम उसे छुपाते हैं, तो हम इधर उधर दौड़ते भागते हैं और अन्य लोगों से छुपाते हैं। And the best place where we can go with our problem is the Lord, and Hannah chose that path. और सबसे अच्छा स्थान अपने समस्याओं को लेकर के जाने का है वो है परमेश्वर और यहोवा। और हन्ना यहोवा के पास अपनी समस्या को लेकर के जाती है। There are three components to the vow that she made. उसने जो मन्नत मानी उसके 3 भाग हैं। In verse 11, we are told she asked God to look at her misery. उसने यहोवा से विनती की कि उसके दुख पर सचमुच दृष्टि करे। Second thing she wanted God to do was to remember her and not forget her. और दूसरी बात जो उसने परमेश्वर से कहा कि मेरी सुखी ले और अपनी दासी को भूल न जा। And the third thing she said is to give her a son. Very specific request. और तीसरी बात जो उसने कहा अपनी दासी को पुत्र दे, जो उसको चाहिए था यथार्थ उसने कह दिया। Okay, and her vow was that if God does these three things, then she will dedicate the child that is born to God for the entire lifetime. और उसने ये मन्नत मांगी कि यदि तीनों ये बातें परमेश्वर मेरे लिए करके देता है तो जो पुत्र मुझे देगा वो जीवन भर यहोवा के लिए अर्पण रहेगा। There is a warning our Lord issued in Matthew chapter 5 verses 36 to 37. मत्ती 5 के 36 और 37 में एक चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। Jesus said, people say, don't break an oath, but I tell you, don't swear at all. 36 में ऐसा लिखा है, अपने सिर की भी शपथ न खाना परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक है वो बुराई से होता है। Yeah. Let your yes be yes and your no be no. Don't go beyond that by making promises which you cannot keep. परंतु तुम्हारी बात हाँ का हो या नहीं का नहीं हो, और इससे आगे न बढ़े, ऐसे वायदाएं ना करे जो आप नहीं कर पाएंगे। Because you cannot turn a black hair white or a white hair black. क्योंकि आप काले बाल को सफेद और सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। And very often we are more prone to failures when it comes to keeping a promise with God. परमेश्वर के साथ जो वायदाएं हम करते हैं उसमें अनेकों बार हम विफल होते हैं। Okay? And we realize that Hannah not only made a vow, but she also actually kept it to the letter by giving her child and dedicating her child to the Lord for his entire life. और हम ये पाते हैं कि हन्ना ने सिर्फ मन्नत नहीं मानी, पर उस मन्नत को पूरा किया जब उसने बच्चे को परमेश्वर के लिए जीवन काल के लिए समर्पित कर दिया। What she did personally is a lesson for us on what stewardship is all about. जो उसने किया ये हमारे लिए एक सीख है कि जो परिचारक का जो पद है वो क्या होता है। What she did was what she received from God, the child she received from God, she gave it back to God.
जो बच्चा उसे परमेश्वर से मिला था, उस बच्चे को उसने परमेश्वर को वापस दे दिया। We need to realize, we need to realize that everything that we possess in our house is what God has given to us, and we need to be stewards of what God has given. और हमें इस बात को का ध्यान रखना है कि हमारे घर में जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमें परमेश्वर का परिचारक होकर के जीने की जरूरत है। I've often said about my friend Joel, now he is no more, but he used to write in every book that he owned, his by ownership, mine by stewardship. मैं अपने मित्र के बारे में कई बार आपको बताया हूँ, जोएल जिसका नाम था, वो अब नहीं रहा। वो अपना हर एक पुस्तक जो उसके पास था वो इसमें लिखता था कि ये उस प्रबंधक का है, और ये उस मालिक का है, और ये मेरे पास प्रबंधक के रूप में दिया गया है। Do we realize that everything that we have, our house, our home, our children, even our educational qualification, our job that we have, everything belongs to Him, and we are stewards of what we have been given by God. और क्या इस बात को हम समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, घर परिवार बच्चे, हमने जो पढ़ाई लिखाई करी है, हमारे पास जो नौकरी है, ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और हम सिर्फ प्रबंधक हैं। Watching Hannah pray and make this vow is the priest Eli. और जो मन्नत हन्ना ने मानी और जो प्रार्थना वो कर रही थी, एलाई ने देखा। Verse 12 says, he observed that her mouth was moving, but there was no words coming out loudly from her mouth. और उसने देखा कि उसका मुंह की ओर ताक रहा था, और उसने देखा कि उसका मुंह तो चल रहा था पर कुछ आवाज तो नहीं आ रहा था। Eli makes a decision, a judgment based on what he saw. और जो उसने देखा उस पर उसने अपना निर्णय दे दिया, उसने उस पर उसने अपना निर्णय दे दिया। Verse 13 says, he thought she was drunk. और 13वें आयत में उसने ऐसा सोचा कि हन्ना ने पी रखा है। So you see, men of God can make wrong decisions, wrong judgments, wrong decisions which can affect a lot. ये देखिए कि जो परमेश्वर के जन हैं वो गलत निर्णय ले सकते हैं, वो गलत न्याय कर सकते हैं। That is why the Bible tells us not to make judgment on anyone, but to wait till God reveals the intentions and heart behind that decision, so that we don't err. और इसलिए बाइबल हमें सिखाता है कि हम किसी का न्याय ना करें, और तब तक इंतजार करें जब तक कि परमेश्वर उसके पीछे का जो उद्देश्य था उसको उजागर नहीं करता है। So this bad decision that, or bad, what to say, this bad judgment that Eli made him speak things which were wrong. और ये जो पूरा न्याय जो एलाई ने किया, वो मतलब गलत बातों को वो कह गया। Okay, he said, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. और वो कहता है कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। Okay, so to a hurting, grieving Hannah, if you had been in her place, what kind of words would this have been? और यहाँ पर हम पाते हैं कि हन्ना तो पहले से ही दुखित है, और उसको अब एली ऐसा कह रहा है। यदि आप उसकी स्थिति में होते तो आप क्या कहते? Very often, people who are hurt and grieving come to us for help and guidance, and if we make wrong judgment on that person or his motives, then we are likely to cause more hurt and damage like Eli did to Hannah. कई बार जो लोग दुखित होते हैं, परेशान होते हैं, वो हमारे पास सलाह के लिए आते हैं, और यदि हमने उनके उद्देश्य को नहीं समझा, हमने उनको सही परामर्श नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है कि हम भी
एलाई के समान गलत न्याय कर बैठेंगे। Even his advice was totally out of place. To a woman who was not drinking, he was telling, put away your wine. और उसका जो सलाह था बिल्कुल जगह जो बिल्कुल गलत था। वो ऐसे वो स्त्री को बोल रहा है कि अपनी नशा को उतार दे, जिसने नशा किया ही नहीं था। He was absolutely insensitive to her feelings. और उसके जो भावनाएं थी उसके प्रति वो बिल्कुल शून्य था, असंवेदनशील था। Being blunt and direct or forthright is not a virtue. एकदम सामने मुंह पर बोल देना और यथार्थ में बोल देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। And we need to be careful because the Bible also calls us priests unto God. हमें सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि बाइबल हमें परमेश्वर का याजक बताता है। 1 Peter chapter 2 verse 9 says, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare his wondrous praises. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। So before we open our mouth to speak, to give advice and to help others, we need to be careful that we are in tune with God so that what we speak, what we utter, builds and not destroys. और जब हम लोगों से बात करते हैं, सलाह देने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, तो सचेत रहें और परमेश्वर के अनुसार बोलने वाले हो सके, जो कि बनाने में मदद करे, बिगाड़ने में नहीं। As leaders, as elders, as believers, we need to refrain from judging people before hearing them out fully. और नेता होने के नाते, अगुआ होने के नाते, विश्वासी होने के नाते पूरी बात सुनने से पहले न्याय न करें। Hebrews 4 verses 15 to 16. इब्रूस Hebrews. इब्रानियों चौथा अध्याय उसका 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Okay, some beautiful things are mentioned about the Lord Jesus Christ. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। He is a high priest who is able to sympathize with us when we go to him. एक ऐसा महायाजक है वो जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ रहता है। Our weakness does not provoke him to anger. हमारी निर्बलताएं उसको क्रोधित नहीं करता है। But he was a victorious person who responded to temptation by not sinning. और लेकिन वो विजयी मनुष्य था जो परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। And the Bible encourages us in verse 16 that we can approach his throne of grace with confidence. और 16वें अध्याय में बाइबल हमें याद दिलाता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर जा सकते हैं, so that we can receive mercy and find grace to help us in our time of need. कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। That finding mercy, receiving mercy, finding grace, help in time of need was not something that Eli had offered because of his bad judgment. दया करना, अनुग्रह पाना और आवश्यकता के समय सहायता करना एली ये नहीं कर रहा था क्योंकि उसने न्याय ही गलत किया था। Okay, so we need to be careful about how we look at different people that we come in contact with. और इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम लोगों को देखते हैं जब उनके संपर्क में हम आते हैं। Then we come to Hannah making her defense. और फिर हम आते हैं हन्ना जहाँ पर अपना प्रतिकार कर रही है। Verse 15 onwards. और 15वें आयत से हम पढ़ते हैं,
Can you read verse 15 and 16? हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। Okay, so you find that a very strange and different way in which Hannah reacts to the accusation that Eli the priest is making. और जो इलाई ने जो बातें हन्ना से कही, उसके प्रति हन्ना का बड़ा विचित्र बातें हम पढ़ते हैं, बचाव हम पढ़ते हैं। You see, in chapter 3, you will find Eli's sons being described as very evil people who had no regard for the things of God. और तीसरे अध्याय में हम पाते हैं कि एलाई के जो पुत्र थे वो बड़े ही दुष्ट थे और परमेश्वर की बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। She doesn't retaliate and react to Eli. हु She doesn't retaliate to the things that Eli said. और इलाई ने जो कहा उसके खिलाफ हन्ना कुछ नहीं बोलती है। If we had been in her place, perhaps we would have told, what do you think of yourself? Manage your house first before you tell that I am a drunkard. और यदि हम उसके स्थान पे होते तो हम क्या कहते कि पहले अपने घर को संभालो, अपने घर को देखो, मुझे ठीक करने से पहले। Okay, so no arrogance, no rebellion, no verbal diarrhea from her side. हम उसके बोलचाल में कुछ भी गलत शब्द का इस्तेमाल, विद्रोह या विप्लव नहीं पाते हैं। She gently tells what she is going through and her condition she और presents before Eli. और बड़ा कोमलता से, मृदुता से वो एलाई को बताती है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। Eli sends her off by speaking to her to go in peace and praying that God should grant her desires. तो एलाई उससे फिर बाद में कहता है, जब उसने बता दिया तो वो कहता है, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुम्हें मन चाहा वर दे दे। Okay, this is what is expected of believers today as well. और आज के विश्वासियों से भी इच्छा यही रखा जाता है। Even if we are unfairly treated, even if false accusations are made, even if everything that is told is a lie, we are expected to remember that we are God's children and not retaliate or react. भले ही हमें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हम पर गलत आरोप लगाया जाए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। In 1 Peter chapter 2 verses 11 to 17, Peter writing to the believers who are under persecution says this. और पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और 11 से 17 में पतरस विश्वासियों को लिख रहा है जो कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं। He tells people to submit to the Roman emperor. और वो लोगों को कह रहा है कि रोमी सरकार के अधीन रहो। Remember that it is the time when Emperor Nero is ruling, who brought in absolutely worst persecution against the Christians at that time. और ये याद रखिए कि ऐसा समय है जब नीरो राजा यहाँ राज कर रहा था और मसीहियों के विरोध में सबसे ज्यादा प्रताड़ना इस समय हुआ था। He tells, obey your emperor as supreme authority. सॉरी अंकल। He tells, obey your emperor. और वो कहता है कि अपने हाकिम को मान लो। Then he tells slaves to submit and obey their masters, even if they are treating them badly. और अपने मालिक के अधीन रहो, भले ही वो तुम्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करता हो। You see, Peter didn't tell people to react and retaliate or spring up an uprising against the evils of that day. पतरस विद्रोह करने के लिए
उस समय का जो हाकिम था उसके विरोध बोलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं बताता है उसको। You see, slavery has gone. You see, Caesars are no more. आप देखिए कि बंधुआ तो चला जा चुका है, अब कैसर जैसे लोग ना रहे। And as Christians live out their Christian life as God wants them to, everything else that is standing against them will tumble and fall. और मसीह होने के नाते उस प्रकार से जिए, और हर एक बात जो उनके खिलाफ खड़ा है वो टूट करके बिखर जाएगा। After this encounter in Shiloh at the tabernacle and with God and with Eli, you come to verse 19, और verse 18. शिलोह में जो घटना हुआ और जो इलाई के साथ जो वार्तालाप हुआ, उसके बाद हम 18वें आयत में आ जाते हैं। Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. और फिर हम पढ़ते हैं कि तब वो चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। You see, the situation had not changed. She was still childless. देखिए कि परिस्थिति यहाँ बदला नहीं है, वो अभी भी बच्चा रही थी। It is just a few moments after her grief and cry. अब उसके दुख और क्लेश के थोड़े समय बाद ही But she trusted that God would answer her prayer. उसने ये मान लिया है कि परमेश्वर, उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर उसको प्रार्थना का उत्तर देगा। Her confidence in the God, the living God, was absolute, and so she could go away with peace and she could return to a normal life. और उसका जो जीवित परमेश्वर में जो विश्वास था वो पूर्ण था, और इसलिए वो सामान्य जीवन जी पा रही थी। So verse 19 says, early the next morning they arose and worshipped before the Lord and went back to their home in Ramah. और बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को धन्यवाद करके रामा में अपने घर लौट गए। 19 आयत में पढ़ते हैं। Then in due course of time a child is born. और समय के साथ एक बच्चे का जन्म होता है। She remembers that God had heard her, and so she names him Samuel, which means the Lord has heard. और वो इस बात को याद करती है कि परमेश्वर ने उसे दिया है और परमेश्वर ने उसने मांग के पाया है, और इसलिए उसने उसका नाम शमूएल रखती है, जिसका अर्थ है मैंने यहोवा से मांग करके इसे पाया है। Every parent has a reason why we name our child in a particular way. हर एक माता पिता अपने बच्चे को नामांकन करते वक्त उसका एक कारण होता है। And we must tell our children why we name them that way, so that never again in life they will forget why they were born. और हमें ये जो अर्थ है, कारण है, ये बच्चे को बताने की जरूरत, ताकि वो कभी जीवन में इस बात को न भूलने पाए कि उन्हें संसार में लाया गया है। Samuel never doubted in his life that God will hear, because he became a towering man of prayer. और शमूएल को अपने जीवन में कभी शंका नहीं हुआ कि प्रभु उसका सुनेगा, और वो प्रार्थना में बहुत ही विशाल एक मनुष्य बन गया। Because he knew that God will answer prayer. क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझता था कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। 1 Samuel 12:23. पहला शमूएल 12 का और 23। Maybe you can treat this as a memory verse as well. और इसको आप मेमोरी वर्स के रूप में पढ़ सकते हैं। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। Okay, so Samuel considered it a sin to not pray for the people whom God had made him a shepherd of. और शमूएल इस बात को पाप के रूप में देखता था कि जिन लोगों को परमेश्वर ने भेड़ की नाई उसे दिया था और उसे चरवाहा बनाया था, उसके लिए वो प्रार्थना ना करे। So he taught them so that they would know and follow and walk in the right way before God. और इसलिए उसने उन्हें सिखाया ताकि वो परमेश्वर के सही मार्ग में चले। Okay, so God heard his mother's prayer. God continuously heard Samuel's prayers too.
परमेश्वर ने उसकी माता के प्रार्थना को सुना और निरंतर उसके प्रार्थना को सुनता रहा। So after a period of time, after she weaned him, she brought him to the tabernacle at Shiloh. और फिर समय बीतने के बाद जब उसका दूध छूट गया, तब वो उसे शिलोह में लेकर के आई। In verse 22, we find that she tells that he will live there always. और 22वां आयत में पढ़ते हैं कि वह वहां सदा बना रहेगा। This brings us to two issues. ये यहाँ पर दो बातों को हमारे सामने लाता है। One is she kept her vow. पहला कि उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। Very often we don't keep our promises. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वायदाओं को नहीं पूरा करते हैं। We pray for a good job. We pray for a good home. We pray for a good vehicle. We pray for good health. Many things we pray for. But when God gives it, we do not use it for the purpose for which we asked. हम कई बार अच्छे नौकरी का के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छे घर का प्रार्थना करते हैं, अच्छे गाड़ी का प्रार्थना करते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जब परमेश्वर हमें वो दे देता है तो जिस उद्देश्य के लिए हमने मांगा था वो उद्देश्य को हम पूरा नहीं करते हैं। Okay, and the second thing that comes out in her action has to do with the difficulty that she would have faced as a mother to part with that small child. और दूसरा जो मुद्दा उसके सामने आता है वो ये है कि एक छोटे बच्चे से, एक माँ होने के नाते एक छोटे बच्चे से दूर रहना उसके लिए बड़ा कठिन रहा होगा। Just last week after the Sunday meeting, we were discussing about many of our children now going to new places to live. पिछले रविवार के मीटिंग के बाद हम इस बात का चर्चा कर रहे थे घर पर कि हमारे कई सारे बच्चे पहली बार घर से दूर जाने वाले। Brother Shaji was telling about how now our elder children are already gone and the younger children are ready to leave the home and go. भाई शाहजी ये बात को बता रहे थे कि हमारे बड़े बच्चे तो जा चुके हैं और अब जो छोटे वाले हैं वो भी घर छोड़कर अब जाने वाले हैं। But our small children are also not very small. They are big college-going kids. हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो इतने छोटे नहीं हैं, वो कॉलेज जाने वाले हैं। It is still a cause of concern and worry because we are afraid what will happen to them after they go there when they are alone out of our supervision. और तब भी हमें चिंता है कि हमारे देख रेख से बाहर जब वो निकल जाएंगे और अकेले रहेंगे तो क्या होगा। You know, the world is full of drugs, alcohol, bad habits and bad words. Would our children face the challenges or will they succumb? Our fears are there. और संसार में गंदगी भरी हुई है और क्या हमारे बच्चे उसके अधीन हो जाएंगे या उस पर विजयी रहेंगे। Hannah was going to leave Samuel in the hands of Eli, who had been totally insensitive to her. और हन्ना जो है अपने बच्चे को एलाई के हाथ में देख छोड़ करके जाने वाली थी, जो कि बिल्कुल भी उसके प्रति असंवेदनशील था। And his sons were evil. और उसके जो Now Samuel grow up in such a bad influence. Is it not better for her to keep the child home? और उसके जो एलाई के जो बच्चे थे बिल्कुल दुष्ट थे, तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि हन्ना इस शमूएल को अपने पास रखे। Hannah trusted God and kept her promise. हन्ना ने परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा धरा और अपने वायदा को पूरा किया। One last thought and I'll be through. एक और विचार बोल करके मैं समाप्त कर देता हूँ। When she starts speaking to Eli, she actually shares her testimony. जब वो एलाई से वार्तालाप करती है तो वो अपना गवाही देती है। She says, I am that woman who stood at the entrance and prayed with grief. वो कहती है कि मैं वो स्त्री हूँ जो फाटक दरवाजे पर खड़े होकर के दुखित होकर के प्रार्थना किया करती थी। Verse 27, I prayed for this child
and the Lord has granted me what I asked of him. 27वां आयत में यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। Verse 28, so now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord. और 28वां आयत, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। For many of us, the only time we share our testimony is on 31st December midnight. और हम में से कई सारे लोग अपना गवाही सिर्फ 31 दिसंबर को मध्य रात्रि में देते हैं। Are we supposed to give our testimonies to each other or to people who don't know God the way we know? हम अपना गवाही जो है सिर्फ एक दूसरे से बांटेंगे या फिर लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनसे। So every experience in our life that we have because of the living, our relationship with the living and true God must be shared and testified to. और हर एक बातें जो हमारे जीवन में हो रही है और परमेश्वर के साथ संबंध के कारण वो हम दूसरों के साथ भी बांटने वाले हो सके। Eli needed to know that God answers prayer. इलाई को ये जानना जरूरी था कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है। So she spoke to him and testified about God to him. और इसलिए उसने उससे बात की और परमेश्वर के बारे में गवाही दी। Okay. So when you read the rest of the life of Samuel, you will see Samuel facing so many challenges all alone. और जब आप शमूएल के बाकी जीवन को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे अकेले होते हुए भी उसने जीवन के कई सारे चुनौतियों का सामना किया। Like he was very successful in many of his responsibilities as a leader of Israel, but there were many deficiencies in his life as well. इस्राएल का नेता होने के नाते वो बहुत सफल रहा, लेकिन उसके जीवन में कमियां भी थी। For instance, his sons became just like the sons of Eli. उदाहरण के लिए उसके जो बच्चे थे वो एलाई के बच्चों समान ही थे। Okay, so one of the biggest lessons we can learn when we study powerful or big or famous Bible characters is that they were as common as us. जब हम बाइबल में जो बड़े सफल और बड़े बड़े परमेश्वर के जनों के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि वो हमारे समान ही साधारण मनुष्य थे। In some matters, they trusted God, did what God wanted them to do, and they were able to live victoriously. In other matters, they failed as miserably as we failed. और कुछ बातों में परमेश्वर जैसा चाहता था वो यथार्थ वैसा ही करते थे और बड़ा सफल हुए, लेकिन कुछ बातों में वो विफल भी हुए जैसा हम विफल हुआ करते हैं। So maybe we will end for today, and someone else can, if the Lord leads, even take up the character studies of other Bible characters that we are studying in the passages that we have earmarked for the Bible quiz. और आज के लिए हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। यदि परमेश्वर आप में से किसी को अगुवाई करता है तो बाकी जने जो जिस भाग को हमने बाइबल क्विज के लिए लिया है उसमें से जो बाकी जने उनके बारे में उनके जीवन में यदि परमेश्वर आपको अगुवाई देता है तो हमें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। Vincent can pray and end this. हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आज की सुबह आपकी उपस्थिति में आते हैं कि रविवार के सुबह जब हम शारीरिक रूप से एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं, आपने इस प्रकार का व्यवस्था करके दिया कि हम अपने धन्यवाद की भेंट को चढ़ा सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके बाद प्रभु जी आपके वचन से देखने का जो अवसर आपने हमें दिया है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हन्ना, एली और शमूएल के जीवन से आपने हमें आज सिखाया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी कुछ बातों को देख सके जिसमें हमारे जीवन में जहाँ कहीं भी सुधार की जरूरत है पिता परमेश्वर आपने उसे उजागर किया है, होने दे।
हम हर एक अपने जीवन को टटोल करके देखें कहाँ हम हमारे अंदर कमी है, कहाँ हम विफल हुए हैं, और शमूएल हन्ना के जीवन से और एला के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। और उस बात को समझते हुए जो सुधार की जरूरत है, उस बात को सुधार करने वाला हमें बना पिता परमेश्वर, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए हम एक और बार धन्यवाद देते हैं। आपके दास के द्वारा जो वचन लाया गया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बहुतायत से ये हम हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो सके। एक और बार हम शाहजी अंकल और शरीन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब वो इस कोविड के बीमारी से ग्रसित है और जब उसे जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह बहुत आयत से उनके ऊपर हो। अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके उन्हें आप छूइए और चंगाई प्रदान कीजिए, बल तंदुरुस्ती वापस दीजिए, और वो एक बार फिर हम सबके साथ जुड़ करके हम एक साथ और आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं ऐसा प्रार्थना करते हैं, शाइनी आंटी को आप बचा करके रखिए, संभाल करके रखिए, उससे उन दोनों को देख रेख करने की जरूरत है, उनको आप अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। साथ ही साथ इस समय के दौरान उनका जो जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें दे करके पूरा कीजिए, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन और जो इस मीटिंग से जुड़े हुए हर एक भाई बहन जो अलग अलग स्थानों में रहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हमारे के साथ बने रहे इस महामारी के दौरान। पिता परमेश्वर, आप हमें बचा करके रखिए, इस महामारी से बचाइए, और हमें जब ये महामारी समाप्त होता है तो हमें वो गवाही बनाइए जो कि हम जीवन काल बोलने वाले हो सके कि पिता परमेश्वर का सामर्थ्य था जिसने हमें इस महामारी से बचा सका। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। हमारे हमारे बच्चे जो जो अब बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहिए, उनको तैयार कीजिए, आपके अनुग्रह में आपने हमें रखे, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। हमें हम सब अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर सकते हैं और संगति कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। Praise God. जय मसीह की। हाय नवीन, कैसे हो? प्रेज गॉड भाई। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे। Praise the Lord. Praise the Lord. Vincent, you can start recording. Yeah, I